हमारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगी कि आप सबको ही पता है कि 3-4 डेज से हमारा फोटोग्राफी कंटेस्ट जो था चल रहा था एंड स्टूडेंट हैव पार्टिसिपेटेड सो वेल। मींस जो ब्यूटी आज तक हम नॉर्थ इंडिया की स्पेसिफिकली जेके हिमाचल की नहीं देख पाए थे, कुछ रीजन की फोटोग्राफ के थ्रू हम उन प्रॉपर प्लेसेस को एक्सप्लोर कर पाए हैं। तो अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं और हमारे स्पीकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम 2 मिनट में शुरू करेंगे। Good morning, Ranjana ma'am. Am I audible? Yes, you are audible here. Okay. Welcome, ma'am, in the RN's webinar. So, as I discussed, today we are here to celebrate World Environment Day. So, I can see you, Dr. Ranjana ma'am. So, yes, students, I want to put some light on this World Environment Day. And as we know, we cannot turn back time, but we can grow trees, green our cities, rebuild our gardens, change our diets, and clean up rivers and coasts. We are the generation that can make peace with nature. So let us get active and be bold, and let us start protect our nature. A very happy World Environment Day to all my dear students. We must protect our environment to make our planet a happier place to live for generations to come. And to celebrate this occasion of World Environment Day by working together to save our planet, to make it a better place to live. Let us give our coming generation a healthier and happier environment to have a beautiful life. So as we know, World Environment Day is celebrated annually on 5th June and is the United Nations principal vehicle for encouraging awareness and action for protection of the environment. This day was created by United Nations in 1974 to create awareness regarding the need to protect our surroundings. So today we have Dr. Ranjana Sharma Garg with us, and she is not only the environmentalist, she is doctorate in environmental sciences and working with various NGOs to protect the environment. But she is North India Queen 2019, a model, an environmentalist, a social worker, an anchor, and professor by profession. So I guess there is a network issue. Ranjana ma'am would soon join us. तो मैं environment को protect करने के बारे में ही आप सब लोगों से बात कर रही थी कि जिस तरह से आपने जो फोटोग्राफी कंटेस्ट है उसमें पार्टिसिपेट किया और हमें बहुत सारे वोट्स मिल रहे हैं. इवन द टीम इज वर्किंग हार्ड टू सॉर्ट दोज 5 बेस्ट पिक्स. अदरवाइज वी वर about to choose the winners for 1, 2, 3, but due to massive participation we have decided now to choose 5 best photographs. So 5 बेस्ट फोटोग्राफ जो हैं वो डॉक्टर रंजना शर्मा गर्ग मैम जो है उन्होंने भी क्या करा है, उनको एनालाइज किया है कि कौन सी वो होंगी, एंड दैट इज टोटली बेस्ड ऑन वोटिंग. तो आप सब कुछ जो है वो देख पा रहे होंगे हमारे एफबी पेज पे कि कितना वोट किसको मिले हुए हैं. सो ऑन दैट बेसिस जो 5 आपके बेस्ट फोटोग्राफ्स हैं उन स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा डॉक्टर रंजना शर्मा गर्ग मैम से इंटरेक्ट करने का और एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से या अपनी ग्रूमिंग या पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछने का. So ma'am, not taking much time, I again welcome you and you can start addressing the students. Thank you ma'am. Very good morning to Ma'am Garima and all the students, all the participants which are present here. First of all, I would like to thank Dr. Garima and Aryan's group of college for inviting me to speak on a topic which is really very close to my heart, because being environmentalist, I love nature and I love doing something for the conservation of environment. So as Garima ma'am has already told you that today we have gathered here to celebrate World Environment Day that we celebrate every year worldwide, 1974 onwards. Why we celebrate World's Environment Day?
to create awareness among the masses about the importance of nature and environment, how these resources, they are our life support system, and without them we cannot even survive on planet Earth. So to create awareness regarding importance of environment and influencing people, inspiring people to do some green initiatives for conserving environment, Environment Day is celebrated worldwide on every 5th June. Now my topic is need of an hour, environmental awareness, need of an hour. So why there is need to aware people? Because nowadays, because of industrialization, increasing human population, and many other activities, the quality of environment is getting degraded. हमारी एयर, हमारा वाटर, हमारा सॉइल, एयर जिसको हम ब्रीद इन करते हैं, वाटर जिसको हम ड्रिंक करते हैं, या सॉइल जिसमें हम अपना फूड ग्रो कर रहे हैं, उसकी जो कंडीशन है वो डे बाय डे डिटेरियोरेट होती जा रही है, एंड द रिजल्ट इज सो मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स और हेल्थ हैजर्ड्स दैट वी आर फेसिंग. सो टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज लाइफ सपोर्ट सिस्टम, द एयर, water, soil, biodiversity, natural resources, every year all the nations, all the countries, they make these efforts to celebrate World Environment Day, right? So many activities are organized. हर साल UN एक थीम डिसाइड करता है फॉर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. सो द थीम फॉर दिस ईयर इज इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, और वी कैन से दैट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, and the host country is Pakistan. Though I am saying all the countries, they are making their effort to aware people about environment conservation. They are organizing so many activities to celebrate World Environment Day, but officially one country is made host by the UN. So this time Pakistan is the host country, and the theme kept for celebrating World Environment Day is ecosystem restoration. So point is to recreate, reimagine, and restore our ecosystem. Why? Because there is a need to revive our degraded ecosystem. Ecosystem which support all types of life forms that we have on planet Earth. And correctly, it is very well said that healthy the ecosystem or environment, more healthier will be its people. जितना ज्यादा हमारी सराउंडिंग्स, हमारा इकोसिस्टम जिसमें हम सर्वाइव करते हैं वो हेल्दी होंगे, उतना ही ज्यादा हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनकी हेल्थ अच्छी होगी, राइट? सो एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करने का मतलब है इन रिसोर्सेज को कंजर्व करना जिनके ऊपर हमारा जो डिपेंडेंस है वो डिपेंड करता है. सो मेन एम अभी इस थीम के साथ हमारा क्या है? टू होल्ड एंड रिवर्स द डिग्रेडेशन ऑफ ecosystem. Because it will conserve ecosystem, it will try to put some efforts to reverse the degradation of ecosystem. It will help us to end the poverty. It will help us to combat the climate change, global warming and climate change. It will also help to conserve biodiversity, and of course it will help us to preserve nature for the future. Ecosystem which are very rich in biodiversity, they provide us so many benefits. For example, they are the reasons for good fertile soil. They give us good yield of timber, wood, fish, and other ecosystem produces. They are large storehouses of greenhouse gases. They help in controlling global warming, climate change, ozone depletion, and many other environmental problems which are really of global concern. They also help us in controlling all the natural calamities like soil erosion, landslides, flash floods, fine. And they also regulate diseases and help us in reducing the risk of natural disasters, fine. So simply अगर हम इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन जो कि थीम है इस पर काम करते हैं, तो आज जबकि हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया है दैट इज इन 2021, एंड बाय 2030 जो कि हम एक टारगेट ईयर लेकर चल रहे हैं यूएन के साथ, तो अगर इसमें हम अपने इकोसिस्टम्स को रिस्टोर कर पाते हैं, इफ जस्ट 350 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड टेरेस्ट्रियल
एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम्स को हम रीस्टोर कर पाए, तो इट विल जनरेट $9 trillion in ecosystem services. So really it's a big amount, and it will also help us in removing 13 to 26 gigatons of greenhouse gases from our atmosphere, right? So ecosystems which can be restored, they are our forest ecosystems, they can be our farmlands, they can be some city or towns, they can be ponds, oceans, etc. So किस तरह से हम इकोसिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना है, we need to visit the site. किसी भी इकोसिस्टम की रिस्टोरेशन के लिए we are making effort. So first of all we need to make a visit. We need to analyze the current situation, कि अभी क्या सिचुएशन है वहां पर, कितनी डिग्रेडेशन हो चुकी है, क्या मेन कॉज है, क्या डिस्टर्बेंसेस है वहां पर इकोसिस्टम के साथ। फाइन, सो वी नीड टू विजिट द साइट एंड एनालाइज द कॉजेज ऑफ डिस्टर्बेंस टू दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम, राइट। देन वी नीड टू मेक आवर प्रोजेक्ट गोल्स, कि हम क्या करना चाहते हैं। और इफ यू डोंट हैव दैट मच नॉलेज कि हमें बेसिकली क्या करना है, कैसे इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन विजिट सम रेफरेंस साइट, कोई और इकोसिस्टम जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में है, मेंटेन्ड है, फाइन, उस इकोसिस्टम साइट को हम विजिट कर सकते हैं। वहां से हम देख सकते हैं कि व्हाट थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम ऑन विच वी वांट टू वर्क, फाइन। तो हम वहां विजिट करेंगे, अपने जो गोल्स हैं वो एस्टेब्लिश करेंगे, राइट, एंड देन विल ट्राई टू एनहांस बायोडाइवर्सिटी इन दैट इकोसिस्टम, फाइन। वहां पर बायोडाइवर्सिटी इंप्रूव करेंगे, वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स वहां पर इनकलकेट करेंगे, वेजिटेशन वहां की इंप्रूव करेंगे, फाइन। जो भी एफर्ट्स करने, वाटर को कंजर्व करने के लिए, एयर को कंजर्व करने के लिए, वहां की बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, सो वो गोल्स जो हमने डिसाइड किए, विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स, विल ट्राई टू अचीव दोज गोल्स, फाइन, एंड देन विल कीप मॉनिटरिंग दैट प्रोजेक्ट एंड विल मेंटेन दैट इकोसिस्टम, फाइन। सो ये थोड़ा सा एक आइडिया है कि हाउ इकोसिस्टम दे कैन बी रीस्टोर्ड। अब आगे हम चले, उससे पहले मैं एक यहाँ पर 2-4 लाइंस हैं मेरी जो मैं कहना चाहूंगी। वो क्या है कि नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो तो हमारे किनारे बदल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देयर इज नो नीड टू चेंज आवर होम। होम कौन है हमारा, क्या है, प्लैनेट अर्थ, राइट। दिस इज द ओनली प्लैनेट नोन फॉर सस्टेनेंस, राइट। सो दिस इज आवर अर्थ, दिस इज आवर हैबिटेट, दिस इज आवर होम, एंड ऑफ कोर्स वी इवन डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बिकॉज देयर इज नो प्लैनेट बी। तो हमें कोई प्लैनेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें अपना घर बदलने की जरूरत नहीं है। वी नीड टू गो ग्रीन, राइट। हमें कश्तियां नहीं बदलनी है, हमें जस्ट अपनी दिशा बदलनी है। तो आज हमारा जो लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है, राइट, चाहे वो हमारा, हम कह सकते हैं कि वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन कोल एंड पेट्रोलियम, राइट, वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन एयर कंडीशनर्स, वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन आवर ओन प्राइवेट व्हीकल्स, वी डोंट वांट टू गो विद द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वी डोंट वांट टू रन द बाइसाइकल्स, फाइन। तो हमने जस्ट अपनी ये डीड्स बदलनी है, हमें अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। तो क्या ये छोटे छोटे एफर्ट्स है जो हम कर सकते हैं ताकि हम अपनी दिशा बदल सकें और एक अच्छा सा किनारा हमें मिले। कहने का मतलब जो हमारे प्लैनेट अर्थ है वो दोबारा से अपनी इसकी जो प्रिस्टीन स्टेज थी, द ग्रीनर वन, द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट, लिवेबल प्लैनेट, वो दोबारा से अपनी उसी कंडीशन में आ सके। तो देयर आर फ्यू थिंग्स, फ्यू डीड्स विच वी आर सपोज टू डू, जो हमें करनी चाहिए, फाइन। तो वो कौन कौन सी चीजें हम क्या कर सकते हैं? द सिंपलेस्ट, easiest and cheapest thing which everyone can do is plant a tree. Fine, do afforestation and reforestation. जितने ज्यादा हम प्लांट्स लगाएंगे, जितनी ज्यादा हम afforestation करेंगे, reforestation करेंगे, we will be able to maintain all our natural resources, will be capable of fighting all the environmental problems. जितना भी environmental degradation हो रहा है, हमारे इकोसिस्टम डिग्रेड हो रहे हैं, उन सभी को हम रिस्टोर कर पाएंगे जस्ट बाय अ सिंपल दिस स्टेप, दैट इज प्लांट अ ट्री. ट्रीज आर लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ, सो प्लीज डोंट कट देम, फाइन. वैसे भी जो एक बड़ा ट्री है, राइट, वो एक साल के अंदर 10 लोगों के लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है एंड अप्रोक्सीमेटली 21 kgs ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब कर लेता है. तो अगर हम बात करें 100 ईयर्स में, तो मोर देन 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को वो
एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो हमें बहुत सारी एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन डिप्लीशन है, इन सभी को सॉल्व करने में, फाइट करने में हमारी हेल्प करता है, और साथ में हमें लाइफ भी दे रहा है, 10 लोगों के लिए वो ऑक्सीजन भी जनरेट कर रहा है. सो वी शुड प्लांट ट्रीज, ईच वन एटलीस्ट शुड प्लांट, मैं नहीं कहूंगी वन बोलूंगी तो आप बिल्कुल भी नहीं करोगे, एटलीस्ट वी शुड प्लांट 10 ट्रीज. और अगर हम ये अपना एक हैबिट बना ले कि जब भी मेरा कोई स्पेशल ओकेजन होगा, मेरा बर्थडे है, कोई मेरी एनिवर्सरी है, कोई मेरी फैमिली में किसी का कोई मेन ओकेजन है, सो आई विल प्लांट ट्री और आई विल गिफ्ट देम अ ट्री सो दैट दे कैन प्लांट देम एंड कैन लुक आफ्टर दैट particular tree because it is gifted to them by one of their loved ones. Fine. So by planting more and more trees, we can restore our ecosystem, we can conserve our environment. दूसरा, manage solid waste. Whatever waste we are generating, especially the solid waste that we are generating, should be properly managed. तो उसको manage करने के लिए basically हमें क्या करना है? We need to reduce, reuse and recycle. सबसे पहले जो हमारी requirement है उसको हम reduce करें, all those things which can be reused उनको हम reuse करें. फाइन. एंड जहां पर पॉसिबल है, जो रिसोर्सेज की रिसाइकलिंग हो सकती है, उनको हमें जरूर रिसाइकल करना चाहिए. इनफैक्ट हमें अपनी एक आदत बना लेनी चाहिए, इफ अ थिंग कैन नॉट बी रीयूज्ड, राइट, सो रिफ्यूज इट. हमें उसको यूज ही नहीं करना, हमें उसको रिफ्यूज कर देना चाहिए, राइट. देन आजकल पेपर मग्स जो है वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं. आपकी खुद के, आपने कॉलेज की कैंटीन्स में देखा होगा, एयरपोर्ट्स पर आपने देखा होगा, कहीं भी आप बाहर जाते हैं तो बहुत सारी जगहों पर पेपर मग्स यूज किए जाते हैं. और उन पेपर मग्स को बनाने के लिए लैक्स ऑफ ट्रीज एवरी ईयर कट जाते हैं, गैलन्स ऑफ वाटर हर बारी वेस्ट होता है. फाइन. सो अवॉइड यूजिंग दोज पेपर मग्स, राइट. इन प्लेस ऑफ दैट वी कैन यूज, of course we should not use plastic plates and plastic cups, जिसकी वजह से ये paper mugs introduce हुए थे. But of course for the conservation of our environment, for our long lasting sustenance on planet earth, we should also avoid using these paper mugs. So what are the alternatives that are available? We can use steel mugs, we can use glass mugs. Fine. So if we keep our own glass mug or a steel mug at our offices or wherever you spend most of the time where you are using these mugs, तो हम काफी हद तक हमारी जो डिपेंडेंस इन पर है उसको सॉल्व कर सकते हैं. और अगर हम इसको टोटली रिप्लेस कर देते हैं, यूज करना बंद कर देते हैं, फाइन, तो 65 lakhs ऑफ ट्रीज की कटिंग को हम सेव कर सकते हैं. एंड कितना सारा वाटर भी हमारा साथ के साथ हम सेव कर सकते हैं. दूसरा, हमें क्या करना चाहिए? वाटर आजकल एक बहुत बड़ा इशू है. इवन ये माना जाता है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो दैट विल बी डेफिनेटली ऑन वाटर, बिकॉज इट इज बिकमिंग अ स्केर्स रिसोर्स डे बाय डे. सो मेनी कंट्रीज दे आर फाइटिंग ओवर दिस इंटरनेशनल रिसोर्स. ये मेरा है, ये तुम्हारी रिवर है, ये इस तरह से. तो अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, वाटर को अगर हम कंजर्व करना चाहें, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, तो हमारी जो ये वाटर की प्रॉब्लम है उसको भी काफी हद तक हम सॉल्व कर सकते हैं. Chandigarh administration is a very good example of a green city, clean city, where almost all the buildings, especially the government buildings nowadays, जो भी new बन रही हैं, पास हो रही हैं, उनके लिए mandatory किया गया है. They will set up this rainwater harvesting structures on their rooftop. तो सिंपली एक छोटा सा एग्जांपल है कि 200 स्क्वायर मीटर का अगर जो एक हाउस है, एक हाउस जो कि इतने एरिया पर कंस्ट्रक्टेड है, 2 लाख लीटर्स ऑफ वाटर को वो एवरी ईयर रिचार्ज कर सकता है. So we should take these green initiatives. We should contribute in recharging our groundwater by doing rainwater harvesting, by using solar energy. Fine. Solar panels अगर हम अपने घर पर लगाते हैं तो कितना तो एक हमारा जो खर्चा है बिजली पर, इलेक्ट्रिसिटी पे जो हम पे करते हैं, वो हमारा कम हो जाएगा. दूसरा, हम कितना हमारे डिपेंडेंस को कोल एंड पेट्रोलियम से शिफ्ट कर सकते हैं towards these alternative sources of energy which are really environment friendly. Trust me, they are so green fuel, they are so eco friendly कि वो हमारे environment को डैमेज नहीं करते. फाइन. चंडीगढ़ का भी आपने सुना भी होगा, बिकॉज ऑफ ऑल दीज ग्रीन इनिशिएटिव्स, किस तरह से वेस्ट को मैनेज किया है, कितना सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग शुरू की है, कितना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर काम हुआ है. तो हमारा जो चंडीगढ़ है, इवन ऑल द यूटी एंड स्टेट्स में अभी नंबर 1 डिक्लेयर किया गया है. एक सर्वे हुआ था जिसमें ग्रीन क्लीन सिटीज की डिक्लेरेशन होनी थी. तो केरला इज द स्टेट जिसको कि नंबर 1 पे रखा गया, लेकिन केरला से भी आगे हमारा चंडीगढ़ है, यूटी चंडीगढ़ है. फाइन. तो यहाँ पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है सोलर लाइट्स के ऊपर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर. सो दिस इज वन ऑफ द एफर्ट जो कि हम इंडिविजुअल लेवल पर खुद भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमें गवर्नमेंट को या किसी और के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है. अपने घरों के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स अपनी बना सकते हैं, एंड वी कैन
guide that water which we collect on the rooftop to our groundwater resources, right? So we should conserve रेन वाटर. देन ये भी हमें याद रखना चाहिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है, जो वाटर वेस्ट करते हैं आज की डेट में, उनको कल डेजर्ट में रहना पड़ता है, ड्रॉट लाइक कंडीशंस फेस करनी पड़ती है. सो वी शुड कंजर्व वाटर. ईच drop of water is important, and we should conserve water not only for our future but also for our future generations, right? And then another important thing that I would like to share with you, maybe आपको अच्छी भी लगे, अभी हमारा एक एंटी टोबैको डे गया है, फाइन. देन दूसरा योगा डे आने वाला है, इंटरनेशनल योगा डे आने वाला है 21 जून को, और आज हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. तो तीनों इंपॉर्टेंट डेज जो कि जून में फॉल करते हैं, आप रियलाइज करोगे हाउ इंपॉर्टेंट दे आर. जब हम इस पेंडेमिक में कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, और दिस इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज, राइट, विच इज अफेक्टिंग आवर लंग्स. जिसको भी कोरोना वायरस अगर टाइमली कंट्रोल ना कर पाए हम, फाइन, तो उसकी वजह से लंग्स को अफेक्ट कर रहा है. तो लंग्स के लिए ईच वन ऑफ अस वी आर कंसर्न्ड कि हमारे लंग्स खराब ना हो जाए. लोगों ने क्या किया है, ब्लैक में ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले लेकर घर में रखना शुरू कर दिया कि अगर हमारे लंग्स डैमेज नहीं होने चाहिए, अगर कोरोना हो भी जाता है तो एटलीस्ट हमें ऑक्सीजन की या हमारे लंग्स को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सी हाउ मच कंसर्न्ड वी आर फॉर आवर लिविंग, फॉर आवर लंग्स, फॉर आवर सस्टेनेंस, फॉर आवर सर्वाइवल. बट यू नो वी never think about the lungs of our earth, जो कि हमारे लंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक रहेंगे तभी हमारा जो सस्टेनेंस यहाँ पर है, हम रेस्पायर कर पाएंगे, हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी और हमारे लंग्स भी ठीक रहेंगे. तो तीनों ही जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो देखो लंग्स की इंपॉर्टेंस को बताते हैं. एंटी टोबैको का यूज क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो भी आपके लंग्स को अफेक्ट करता है. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, हमने अपना जो एनवायरनमेंट है, जो नेचर है, उसको ग्रीन रखना है. क्यों ग्रीन रखना है? बिकॉज वी इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम देयर फॉर आवर लंग्स अगेन, राइट. एंड योगा हम क्यों करते हैं? योगा इतना ज्यादा इसीलिए करते हैं क्योंकि योगा जो है हमारी हेल्थ को इंप्रूव करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, स्ट्रेंथन करता है हमारी बॉडी को, फ्लेक्सिबिलिटी हमें देता है, फाइन. सो वहां पर भी बहुत सारे प्राणायाम ऐसे हैं जो हम लंग्स की कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए करते हैं, अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करते हैं. तो तीनों ही डेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ लंग्स, फाइन. सो इफ वी वांट कि हमारे लंग्स स्ट्रॉन्ग हो, अच्छी उनकी कैपेसिटी हो, हमें किसी भी तरह की कभी कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ना हो, तो वी नीड टू मेंटेन द लंग्स ऑफ अर्थ फर्स्ट, फाइन. सो हमें फॉरेस्ट एरियाज को मेंटेन करना है. जितने ज्यादा प्लांट्स हम लगा सकते हैं उतने ज्यादा हमें प्लांट्स लगाने हैं, ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है, ओवरऑल हमारे एनवायरनमेंट की हेल्थ है, वो हमारी अच्छी रहे. ठीक है. एक लास्ट और पॉइंट ऐड करूंगी, ऑल्दो देयर आर सो मेनी, बट कीपिंग द शॉर्टेज ऑफ टाइम इन माय माइंड, डोंट वेस्ट फूड. हमें फूड को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. वाई? क्यों फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए? बिकॉज जब हम फूड वेस्ट करते हैं तो कितना सारे रिसोर्सेज, कितनी एनर्जी, कितना वाटर, कितना मनी जो उस फूड को ग्रो करने में स्पेंड किया होता है, उस सभी को हम वेस्ट कर देते हैं. सिंपली अगर हम इंडिया की बात देखें तो 50 kg पर पर्सन फूड वेस्टेज है हमारे इंडिया की, और वर्ल्ड वाइड हम देखेंगे तो और भी ज्यादा इसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा. सो अगर आपके पास किसी भी ओकेजन पर फूड ज्यादा है, फॉर एग्जांपल किसी पार्टी के बाद कोई फूड बच जाता है, तो कहीं पर भी आपको उसको एनवायरनमेंट में डंप नहीं करना है, फेंक नहीं देना है. क्योंकि उससे क्या है, बहुत ज्यादा उसके डिकम्पोजिशन से बहुत ज्यादा मीथेन निकलती है जो कि एटमॉस्फेयर में जाती है, और हमारे लिए और एक बड़ी समस्या जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम दे रही है, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, उसको और बढ़ावा दे देती है, फाइन. तो एक तो हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही हमें कुक करना है, उतना ही हमें यूज करना है. इन केस इवन यू इफ यू हैव एक्स्ट्रा फूड इवन फॉर 1 person और 2 person, तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी कोई नीडी है, इंडिया में कमी नहीं है नीडी लोगों की, पुअर लोगों की, तो वो फूड हमें उनको डोनेट कर देना चाहिए. ज्यादा अमाउंट में है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ चंडीगढ़ में भी, वहां जाकर हम उसको डोनेट कर सकते हैं, फाइन. तो अगर हम फूड को वेस्ट नहीं करेंगे तो 8% तक हमारे जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस है उनको भी हम रिड्यूस कर पाएंगे, फाइन. तो बिल्कुल भी फूड को वेस्ट नहीं करना है. साथ में जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, आजकल आप देखो मोबाइल फोन यूज करते हो, सारी की सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, सभी एक्टिविटीज ऑनलाइन हो रही है, सो यू आर यूजिंग
लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर्स एटसेट्रा, फाइन। सो हम क्या करते हैं, जो इनके चार्जिंग पॉइंट्स हैं उनको ऑन ही छोड़ देते हैं, हम प्रॉपर्ली इनको स्विच ऑफ नहीं करते, क्योंकि हमने रोज यूज करना है, बार बार उसको यूज करना है। सो समटाइम्स जो इसके स्विचेस हैं हम उनको टाइमली स्विच ऑफ नहीं करते। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि प्रॉपर्ली आफ्टर यूजिंग दीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वी शुड स्विच देम ऑफ। अगर हम ऐसा नहीं करते तो लगभग 16% जो हमारा टोटल खर्चा है इलेक्ट्रिसिटी का, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हम प्रॉपर्ली इसको यूज नहीं करते, मिस यूज करते हैं, ऑन छोड़ देते हैं। देन जो हमारे पुराने वाले बल्ब से वो बहुत ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी यूज करते हैं। तो इन प्लेस ऑफ दैट हमें क्या करना चाहिए, CFL बल्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। और जहां पर पॉसिबल है हमारे सनलाइट अंदर आती है तो हमें अवॉइड करना चाहिए फालतू में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने के लिए। सो दीज आर स्मॉल इनिशिएटिव, स्मॉल ग्रीन डीड्स जो कि हमारे प्लैनेट को ग्रीन बनाने में और ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। तो ये हम सारी चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं इफ वी वांट टू मेक आवर एनवायरनमेंट green and clean. And of course, because of degrading conditions of our environment and ecosystem that is visible to each one of us in form of global warming, climate change, ozone depletion, राइट, फ्लैश फ्लड्स जो आ जाती हैं, कई बार फ्लड्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है, साइक्लोन्स आने लगे क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे जो ओशंस है वो इतने ज्यादा हीटअप हो गए हैं कि बार बार साइक्लोन्स आते हैं। इस तरह की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो उनकी वजह से हमें फेस करनी पड़ रही है। इवन ये माना जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग से जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और हमारे जो पर्माफ्रॉस्ट ग्लेशियर्स हैं जो कितने टाइम से जमे पड़े थे वो अब पिघल रहे हैं, तो उनके अंदर जो बरिड बैक्टीरियाज एंड वायरसेस हैं दे मे आल्सो रीएक्टिवेट। फाइन, अभी एक छोटे से वायरस ने पूरी की पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। तो और पुराने वायरसेस जो पहले प्लेग था, चेचक थी, बहुत सारे बैक्टीरिया एंड वायरसेस से हम हमेशा फाइट करते आए हैं। तो और भी ऐसे वायरसेस जो कभी एनिमल्स को इफेक्ट कर चुके हैं, इम्पैक्ट कर चुके हैं, नाउ दे इफ दे आर buried under those permafrost glaciers, so because of their melting अगर वो दोबारा से reactivate हो गए तो you can imagine कि कितनी ज्यादा problems हमें होने वाली है। So just by planting more and more trees, by doing afforestation, reforestation, by restoring the existing ecosystem or maintaining the ecosystems which are already in good condition, हम क्या कर सकते हैं, we can secure our own survival on planet Earth। किसी और के लिए नहीं करना है, खुद अपने लिए ही करना है। फाइन, अपना लॉन्ग लास्टिंग सर्वाइवल रहे, हमारी फ्यूचर जनरेशंस यहाँ पर सर्वाइव करें, तो इसके लिए हमें क्या करना है, वी नीड टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज। और एंड में यही 2 लाइंस कहना चाहूंगी, चलो आज फिर से इस जमी को जन्नत बनाते हैं, चलो आज फिर से इस जमी को जन्नत बनाते हैं, रोज ना सही एटलीस्ट आज 2-4 प्लांट्स लगाते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में जहां पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट हो रहा है, एवरीबडी इज डूइंग प्लांटेशन, फाइन, सो वी शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट। जितना आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 1 प्लांट लगाओ, 2 प्लांट लगाओ, उनको लुक आफ्टर करो, उनको मेंटेन करो। फाइन, पैचेस ऑफ फॉरेस्ट वी कैन मेंटेन, इफ वी कैन नॉट develop a complete forest, we can grow them in patches wherever we get place, fine, we can plant trees over there, fine. So patches of forest should also be maintained to enhance the green cover or the forest cover. So thank you so much Garima ma'am and all the participants for patiently hearing me, and I wish you all once again happy World Environment Day. Thank you. थैंक यू डॉक्टर रंजना मैम। और जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, आई मस्ट से इट वाज वेरी लिरिकल और स्टूडेंट मस्ट हैव एंजॉयड। आप एक परफेक्ट स्पीकर हैं आज के इस इवेंट के लिए, क्योंकि एक तो आप ब्यूटी क्वीन हैं और साथ ही एनवायरमेंटलिस्ट हैं। तो मुझे लगता है जब तक हम अपना ध्यान सबसे पहले हमें रखना है और अपनी सराउंडिंग का रखना है, तो आपसे बेटर स्पीकर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपने हमारे स्टूडेंट्स को ग्रूमिंग सेशन भी दिए हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, और आज आपने एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने की बात भी की है। तो आई मस्ट से, एज यू हैव सेड दैट सेलिब्रेटिंग दिस डे, इट कम्स विद अ प्रॉमिस दैट वी शुड सेव द एनवायरनमेंट एंड द वर्ल्ड। We should not pollute water, land, air, and environment, because once it's lost, it is lost forever. As we know, Earth provides us with everything that we need, and therefore we must take care of it with all our efforts. So we all must take on this particular day to successfully plant more trees, and we should take oath to protect nature. मैम, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हमने इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे फोटोग्राफी कंटेस्ट जो था वो एक अनाउंस किया था स्टूडेंट्स को, एंड वी हैव रिसीव्ड मैसिव पार्टिसिपेशन। आई मस्ट कंग्रेचुलेट ऑल द पार्टिसिपेंट्स। पर जो 5 बेस्ट फोटोग्राफ्स हैं जो आप भी कल से देख रहे हैं और हमारी टीम भी उनको एनालाइज कर रही है, तो प्लीज आप वो अनाउंस कीजिए। और उनमें से 2 स्टूडेंट्स हैं वो आपसे इंटरेक्ट भी करना चाहते हैं, तो प्लीज उनको अलाउ कीजिए। Sure.
First of all, I would like to congratulate Garima ma'am for organizing so many events. मैं देखती रहती हूँ फेसबुक पे कोई भी एक डे हो, ड्रग्स वाला है, एंटी टोबैको है, कोई भी और डे है, मुझे नहीं लगता कि आरएनस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस उस पर कोई भी किसी तरह की इवेंट ऑर्गेनाइज ना करता हो. दूसरा, मैं मैम एग्री करती हूँ आपसे, अगर हम खुद का ध्यान नहीं रख सकते तो हम किसी का ध्यान भी नहीं रख सकते. सो हेल्थ एंड फिटनेस शुड बी आवर प्रायोरिटी, एंड देन वी शुड वर्क फॉर आवर फैमिली, कम्युनिटी, एंड देन ओवरऑल फॉर आवर नेशन एंड द होल वर्ल्ड, राइट. थर्ड, ये बहुत ही एक अच्छा यूज है सोशल मीडिया का जो आप लोगों ने एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की. आज का जो यूथ है वो ज्यादा सोशल मीडिया को समझता है, उस प्लेटफॉर्म को बहुत तरीके से यूज करता है, बट इस तरह का भी यूज अगर वो करे तो दिस इज रियली अप्रिशिएबल. आई कांग्रेचुलेट यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ ब्यूटीफुल इवेंट, जिसमें एक तो हमने नेचर की ब्यूटी को बहुत अप्रिशिएट किया, और दूसरा सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव यूसेज यहाँ पर देखा गया कि जितने ज्यादा लोगों ने उनको वोट किया, जितनी अच्छी पिक्स उनकी थी, उसी के बेसिस पर उनका ये रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो रहा है. सो आई वुड लाइक कि जब मैं ये अनाउंस करूं नाम हमारे विनर्स के, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. अगर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो दे ऑल आर really the winners, fine, because अपनी एक शेल को क्रिएट करना, अपने एक कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलकर कोई भी चीज करना, छोटा बड़ा कोई भी काम करना, तो एक एफर्ट रिक्वायर करता है, फाइन. एंड जो भी ऐसा करता है ऑब्वियसली वो मेरी बहुत सारी बधाई का पात्र है, फाइन. सो जब मैं अनाउंस करूंगी विनर्स के नेम, आई वुड लाइक कि मैं उनको देख सकूं, तो आई विल रिक्वेस्ट देम टू प्लीज स्विच ऑन देयर कैमरा टू, राइट. So the five best winners, five best picks which were awarded as per the social media or as per the voting system, they are Shahid Anwar from B Pharma. Is he here? Can you hear me? Shahid Anwar from yes, B ma'am, Pharma. I can see Shahid is there. Okay, congratulations, Shahid. Thank you, ma'am. Shahid, you want to ask something? Yes, ma'am. Yes, please, Shahid, go ahead. मैम मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग. मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. क्लाइमेट चेंज इज द रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, राइट. ग्लोबल वार्मिंग क्या है? Temperature of Earth is rising globally because of increasing emissions of these greenhouse gases, that is methane, carbon dioxide, water vapors, oxides of sulfur and nitrogen. There are many more, fine. So this is known as global warming, rise in the temperature of Earth which is taking place globally. एंड हम सभी ने सोशल स्टडीज में पढ़ा है, ज्योग्राफी में पढ़ा है, जो हमारे टेम्परेचर पैटर्न्स हैं, जब इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज आता है, जैसे कि टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, फाइन, तो वो हमारे विंड पैटर्न्स को, हमारे रेन पैटर्न्स को भी अफेक्ट करता है. एंड व्हाट इज वेदर एंड व्हाट इज क्लाइमेट एक्चुअली? वेदर और क्लाइमेट क्या है? जब हमारे टेम्परेचर में वेरिएशंस आने लगती है, विंड पैटर्न्स में चेंजेस आते हैं, जब हमारी रेन पैटर्न्स में चेंजेस आने लगते हैं, तो वो ओवरऑल धीरे धीरे हमारे वेदर को, एंड देन वेदर जब चेंज होता है कुछ ईयर्स के लिए, तो ओवरऑल हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है. तो बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ, दिस इज द हार्मफुल सीक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. कि अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो हमारे सीजन में शिफ्टिंग आ रही है. हमारा, आप देखते थे पहले ऑटम और स्प्रिंग सीजन कितना प्लेजेंट टाइम होता था, लेकिन नाउ बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज विच इज द रिजल्ट ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग, हमारा समर सीजन बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर गया है. समर्स दे आर बिकमिंग रियली हॉट एंड विंटर्स दे आर बिकमिंग टू कोल्ड, फाइन. तो बीच का जो ये प्लेजेंट वाला सीजन है, हार्डली हम 15-20 डेज एंजॉय कर पाते हैं, एकदम से ही ट्रांजिशन फेस आ जाता है, और समर टू हम विंटर्स में एंटर कर जाते हैं, विंटर्स टू हम समर्स में एंटर कर जाते हैं. सो दिस इज क्लाइमेट चेंज बेसिकली, एंड इट इज ऑफ कोर्स हमारे ह्यूमन सस्टेनेंस को बहुत तरीके से अफेक्ट कर रहा है. हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारी वाटर सिक्योरिटी, हर एक चीज को ये अफेक्ट कर रहा है. तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज इज द रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. थैंक यू मैम. थैंक यू. So our second winner is Wasim Abid from MBA. Yes, ma'am. We tried to contact him, but he belonged to JK, so there is some network error. So please announce another one. Okay. So next is Suleiman Seth. He is also not here. Sorry. Am I audible? Yes. Yes, Okay. ma'am. You're audible. He is not also here. Okay. Then next is Ekta Shukla. Yeah, Ekta is there. Ekta, unmute yourself. She is and also switch from on your B video. Pharma. Yes, ma'am. Ekta? Yes, Ekta is here. Good morning, Ekta, ma'am. you can ask your question, and congratulations. Thank you so much, ma'am. Congratulations from my side too.
Thank you so much, ma'am. I'm very glad to interact with you. Thank you. Ma'am, my query is about regarding this current situation, COVID. What is the importance of environment regarding this COVID? See, कोविड ने हमें दिखा दिया है कि अगर हमारा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहेगा, क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट अच्छी नहीं रहेगी, तो वन और दी अदर वे बहुत सारी इस तरह के बैक्टीरिया एंड वायरसेस हैं जो आते रहेंगे और उनकी वजह से हमारी हेल्थ को इफेक्ट होता रहेगा. फाइन, दो कुछ पॉजिटिव साइंस भी देखने को मिले, बट I don't consider them कि वो इतने ज्यादा हमारे लिए beneficial नहीं है in comparison to the losses that we bear because of this pandemic attack. Fine, कितने सारे लोगों की डेथ हो गई, कितने हमारे रिसोर्सेज जो कि डेवलपमेंट में यूज हो सकते थे, जस्ट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, इस पेंडेमिक को फाइट करने के लिए हमारे यूज हो गए. फाइन, तो एनवायरमेंट का अगर मैं कहूँ तो ये इंपॉर्टेंस है कि जितना ज्यादा हेल्दी हमारा एनवायरमेंट रहेगा, अच्छी क्वालिटी एयर रहेगी, वाटर रहेगा, सॉइल रहेगा, उतना ही कम हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी, उतने ही कम इस तरह के बैक्टीरिया वायरसेस सामने आएंगे और हमारी हेल्थ जो है वो सेफ रहेगी, अच्छी रहेगी. लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि व्हीकल्स कम यूज हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो की वजह से जो पोल्यूशन होता था, व्हीक्यूलर एमिशंस की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा था, उसको काफी हद तक हमने देखा है कि वो फिर भी हमारी जो परमिसिबल रेंज है उसके विद इन नहीं आया, बट काफी हद तक रिड्यूस हुआ. तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि एक फायदा जरूर हो गया कि हमारा जो एनवायरमेंट है उसको हम काफी हद तक कंट्रोल कर पाए. बट दिस इज नॉट द राइट मेथड ऑफ कंजर्विंग एनवायरमेंट व्हेन we are exhausting all our resources which could have been utilized for development in fighting such pandemics, right? So by maintaining the good conditions of environment, quality environment maintain करके of course हमारी health को जो है वो हम अच्छा रख सकते हैं. Thank you, Ekta. Yes, ma'am. एक और चीज मैं ऐड करूंगी एकता यहाँ पर. आपने स्पेशली हेल्थ के रिगार्डिंग पूछा, तो ये देखा गया कि जो ये वायरस था, whether I do not want to get indulge in the discussion कि artificial था या natural था, but जितना ज्यादा जो strong था, ठीक है, जितना ज्यादा नेचर के साथ एसोसिएटेड था, फिट था, इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, फाइन, तो उतना ही ज्यादा उसने इजीली फाइट किया इस पेंडेमिक को. फाइन, तो अच्छी कंडीशंस में रहना, एनवायरनमेंट की अच्छी ऑक्सीजन ब्रीथ करना हमें हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेस लेवल को बहुत ज्यादा डिक्रीज करता है. तो ऑफ कोर्स चाहे कोई डिजीज हो, कोविड है या कोई भी और प्रॉब्लम हो, एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहना बहुत तरह से हमारी हेल्थ को जो है वो इम्पैक्ट करता है. Yeah, thank you, ma'am, and thank you, Ekta. And the last one is Dilaver Ahmed from MBA. Yeah, ma'am, he is also not here due to some network issue in that region particularly. So thank you for announcing the winners. I must congratulate all the participants. Although ऐसा नहीं है कि जिनके नाम नहीं आए हैं उन्होंने कुछ कमी थी उनकी पिक्स में, but it was totally based on votes. So जिस पे भी votes ज्यादा है, we have to choose those one. और मैं अपने मीडिया डिपार्टमेंट से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इन 5 पिक्स को आप शोकेस कीजिए जो टैलेंट शो किया हुआ है हमारे पार्टिसिपेंट्स ने और विनर्स ने इधर. थैंक यू मीडिया डिपार्टमेंट. सॉरी, मीडिया डिपार्टमेंट, प्लीज शोकेस द पिक्स. Wow. Yes, this is by Wasim Abid. Wow. Please all of these, they are play once beautiful. again. Okay, no issue. So, ma'am, on behalf of RN Group of Colleges, again, I would like to extend my heartfelt thanks that in this COVID pandemic, you managed from your home and you address the students. आप पहले भी आए हैं, तब भी ऐसे सिचुएशन थी जब आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सेशन दिए थे, और कमिंग टाइम में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम हमेशा चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडेंट्स के एक मेंटर बने. तो हम एक लॉन्ग एसोसिएशन में आपके साथ रहेंगे. मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस लिया था और आज भी लेती हूँ कि जब भी ये सब कुछ ओवर होगा आप हमारे कैंपस में आगे स्टूडेंट्स को मिलेंगी. थैंक यू अगेन मैम. My pleasure. It's always my pleasure to interact with you either virtually or directly visiting your institute. So I would love to be there sometime, and I hope कि जल्दी ये situations से हम overcome करें and सारी की सारी जो life जिस तरह से पहले हम survive करते थे वो सब चीजें normal हो. So my best wishes to RN groups of colleges, particularly Garima ma'am and all the participants who are present here. All the very best. More power, more energy to you for organizing such a beautiful events. Thank you. Thank you, ma'am, and thank you, participants. Thank you.